Hello students, how are you? I hope you are well and safe at your home. And today I am here with a new concept of accountancy or of 11th class, chapter number 4, process and basis of accounting. And in last video of chapter 4, I explained the process of accounting, identification, after that preparation of voucher, after that preparation of voucher, after that recording in the original entry books, after that posting to ledger, and last step preparation of profit and loss account and balance sheet of the business organization. And now turn is basis of accounting. So basis of accounting, that means मेन ऑब्जेक्टिव जो है अकाउंटिंग का, दैट इज टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस. अकाउंटिंग का मेन मोटिव ही यही है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वांट टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस. So at the end of that period, and so there is two method to ascertain to record the business accounting transactions. Number one, cash basis of accounting, and number two is the accrual base of accounting. So first of all, cash basis of accounting. In this basis of accounting, incomes are recorded when they received in cash. In originally इनकम्स तभी रिकॉर्ड की जाती हैं जब हमें रियलिटी में कैश में रिसीव हो जाती हैं. अगर हमारी कैश में रिसीव नहीं हुई इनकम, then on this method we not record in our accounting books. And similarly expenses are recorded when they actually paid. जब expenses भी उसी बेस पर जब एक्चुअली में पे किए जाते हैं तभी जो है उनको हम अकाउंट की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं. जब तक वो कैश में इनकम रिसीव नहीं होती और एक्सपेंसेस कैश में पेड नहीं किए जाते तब तक हम उन अपनी इनकम और एक्सपेंसेस दोनों को ही इग्नोर कर देते हैं. सो हमारा जो प्रॉफिट इसमें कैलकुलेटेड किया जाता है वो क्या होता है, टोटल इनकम को काउंट कर लिया जाता है. आफ्टर दैट टोटल एक्सपेंसेस वी सब्ट्रैक्ट देम. Total incomes minus total expenses. Income are exceed, then profit, and expenses are exceed, then it is loss. So it is in this method profit and loss is calculated with the help of receipts and payment account. One side receipts are recorded and second side payments are recorded. Left hand side receipts and right hand side payment will be recorded, and difference of both of the sides is called प्रॉफिट और लॉस. एंड मोस्टली जो है इसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज करते हैं इनको यूज नहीं करते. मोस्टली प्रोफेशनल्स पर्सन इसको यूज कर सकते हैं. आप इसके लिए एक अच्छा सा एग्जांपल डॉक्टर का देख सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो कि whenever we go to the hospital and first of all we pay the consultancy fees. द डॉक्टर की फीस है, पहले हम उसको पे करते हैं. आफ्टर दैट डॉक्टर विल चेकअप एंड गिव द मेडिसिन एंड गिव द ट्रीटमेंट ऑफ आवर डिजीज. सिमिलरली लॉयर्स आर फॉलो दिस मेथड. तो मोस्टली जो है प्रोफेशनल पर्सन ही इसको यूज करते हैं. सो हियर आर सम एडवांटेजेस ऑफ, एंड इन दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग देयर इज it does not arise the point of outstanding expenses and prepaid expenses and earned income. इसका तो कोई ऐसा कंसेप्ट ही नहीं होता आता क्योंकि एक्सपेंसेस एक्चुअल में पे हो गए तो दैट मीन्स ओके. सो नाउ द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज वेरी सिंपल, क्योंकि बहुत सिंपल है. कोई भी पर्सन इनकम को एक लेफ्ट हैंड साइड रिकॉर्ड कर लेगा और एक्सपेंसेस को राइट हैंड साइड, एंड एट द एंड ऑफ द 1 month and 1 year calculate all the totals of receipts and payment and find the profit or loss. So this method is very simple and realistic, and this method does not need any estimation. इस मेथड के अंदर किसी भी पर्सन को जो इसको रिकॉर्ड कर रहा है या अनदर जो प्रोफेशनल पर्सन है उसको किसी भी तरह की एस्टिमेट या पर्सनल जजमेंट करने की जरूरत ही नहीं होती. एक्चुअल में कैश रिसीव हुई, रिकॉर्ड हो गई. And this method is only suitable for where all transactions are related to cash.
ये उन्हीं ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एंटरप्राइजेस के लिए अंदर सूटेबल होता है जहां पर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस कैश से रिलेटेड होती हैं, क्रेडिट पर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिलेटेड नहीं होती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया डॉक्टर्स और लॉयर्स का, तो वहीं पर ज्यादातर सूटेबल होते हैं। नाउ disadvantages of this method. According to this method does not show the true profit or loss. ये मेथड जो है हमें एक अकाउंटिंग पीरियड का प्रॉपरली ट्रू और फेयर प्रॉफिट एंड लॉस शो नहीं करता। हमारी जो इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, तो डज नॉट शो क्लियर पिक्चर, ट्रू पिक्चर ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। एंड सेकंड, इट डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल। ये जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड है, ये मैचिंग प्रिंसिपल को जो है फॉलो नहीं करता। उसमें मैंने बताया था कि जिस अकाउंटिंग पीरियड की इनकम्स ली जाती हैं उसी अकाउंटिंग पीरियड की ही एक्सपेंसेस ली जाती हैं। यहाँ पर इनकम तो कैश में रिसीव हो गई, हमें नहीं पता ये नेक्स्ट ईयर की हैं, ये जनवरी के मंथ की है या लास्ट ईयर की हैं, और एक्सपेंसेस कौन से टाइम पीरियड के लिए। तो इसलिए ये वाला मेथड जो है वो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, और इस मेथड के अंदर अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को, इनकम और एक्सपेंसेस को मैनिपुलेट करने का, चेंज करने की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो कैश में कैलकुलेट जो है उसमें रिसीट्स और इनकम को कैश में चेंज कर दिया जाता है। एंड लास्ट इज इट डज नॉट, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो कैपिटल और रेवेन्यू नेचर की नेचर आइटम्स में तो डिफरेंशिएट करता ही नहीं है। उसका मीनिंग नहीं, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि इनकम कैपिटल नेचर की है या एक्सपेंसेस जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, ये इनमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करता। और सबसे बड़ा इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको बिजनेस एंटरप्राइजेस को यूज करने से मना कर रखा है, डू नॉट फॉलो इट। एंड सेकंड बेसिस इज द accrual basis of accounting. Accrual means in this method incomes are recorded when they earned or occurred. इस मेथड के अंदर जो इनकम्स हैं वो तभी रिकॉर्ड कर ली जाती है जब हमने अर्न कर ली या अक्रूड कर ली। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है अभी अभी हमने किसी कस्टमर को गुड्स सेल की 30th मार्च को, ठीक है, उसने हमारे को पेमेंट नहीं दी, देन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट and payment will be received in the month of April and May, but sale is recorded to March. हमने जो इनकम अभी हमने सेल की है गुड्स की, वो हमने 30th मार्च को की है, डीलिंग हो गई है, जो गुड्स हैं वो डिस्पैच हो चुके हैं, लेकिन क्या है कि उसकी पेमेंट हमारे को अप्रैल या मई में रिसीव होनी है, बट इट इज द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन दिस ईयर, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द नेक्स्ट ईयर, बिकॉज हमने सेल जो है मार्च में ही अर्न कर ली है, दैट मीन्स हमने ये इनकम एक्रूड कर ली है। सो दैट इट इज इररिस्पेक्टिव, ये मैटर नहीं करता कि कैश हमने रिसीव की है या नहीं की। कैश हमें 30th मार्च 2018 को हमने सेल की, तो हमारी जो है वो उसी से 2018 की सेल में रिकॉर्ड हो जाएगी। हमें ये इसका कोई लिंक नहीं है कि कैश हमें अप्रैल में रिसीव हो रही है या मई में रिसीव हो रही है। सेम उसी तरह से एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इंकर्ड, एक्सपेंसेस भी उसी तरह से होते हैं, उसी तरह से रिकॉर्ड किए जाते हैं व्हेन दे इंकर्ड एंड डज नॉट और बिकम ड्यू, जब ड्यू हो जाते हैं। इसका ये मीनिंग नहीं कि जब तक हम कैश में पे नहीं करेंगे तब तक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसमें हम कैश से लिंक नहीं देखते, हम इसका इंकर्ड और ड्यू से लिंक देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक जो है अपनी फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री की बिल्डिंग जो है या शॉप की बिल्डिंग जो है वो हमने रेंट पर ली, और अब हमने क्या किया, हमने अपना रेंट 1 अप्रैल टू 30 जन तक पे कर दिया है। अभी हमने फेब और मार्च का रेंट अभी पे नहीं किया, एंड वी आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2018। तो हम उसमें जो रेंट है, अभी यहाँ हमने 10 मंथ का रेंट दिया है, 2 मंथ्स का रेंट अभी पेंडिंग है, बट वी रिकॉर्ड द रेंट अप टू 1 अप्रैल टू
31st March. It doesn't matter that we have not paid. We record the expenses related to one particular period. That means we pay or not. That 10-month rent is paid and 2-month rent is unpaid, and unpaid rent, unpaid expenses is called outstanding expenses. And in this method, outstanding expenses which are due but not paid, they are recorded, and prepaid expenses which are paid in advance. इसी तरह से मान लो हमने एक जो है शॉप का रेंट जो है हमने 1 अप्रैल 2018 से टू हमने 30 जून 2019 तक पे कर दिया है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम रिकॉर्ड तो अपनी अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्डिंग तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक करेंगे, लेकिन 1 अप्रैल टू 30 जून तक का जो रेंट होगा वो हमारा प्रीपेड रेंट होगा, वो रेंट हमने एडवांस में पे कर दिया है, तो वो इस नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड किया जाएगा. सो इन दिस मेथड outstanding expenses and prepaid expenses, earned income, these concepts are arise. And now advantages of this method. This method discloses true and fair profits and profit and loss. And this method follow the matching principle. हम इस मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम वन पर्टिकुलर ईयर के जो है एक्सपेंसेस लेते हैं, तो उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की हम इनकम भी लेते हैं. Our accounts are prepared only 1 April to 31st March. All incomes and all expenditure related to this time period, whether it is paid or whether it is not paid, recorded in the books of account, so that it follow the matching principle. And this method discloses true financial position of the business. क्योंकि पूरा एक पर्टिकुलर पीरियड का रिकॉर्ड हो जाता है, तो हमारे को बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी पता चलता है, ट्रू प्रॉफिट का भी पता चल जाता है, और ये मेथड कैपिटल और रेवेन्यू में भी डिफरेंशिएट कर देता है. जो कैपिटल नेचर की रिसीट्स और एक्सपेंडिचर होते हैं वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होते हैं, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं होते हैं, और जो रेवेन्यू नेचर के रिसीट्स और एक्सपेंडिचर हैं those are recorded in profit and loss account, so it differentiate between capital and revenue nature item. And last benefit of this method that Companies Act 2013 recognize it, उसने इसको जो है legally accepted कर रखा है, and all the business organization which are dealing in the production, selling and services rendered, they use this method. And this advantage of this method is only, this method is not simple. जैसे ये कैश बेसिस वाला मेथड जो था वो बहुत सिंपल था, लेकिन ये मेथड इतना सिंपल नहीं है. जिस भी पर्सन को सबसे पहले पूरा पता होगा कि ये इनकम, ये कैपिटल नेचर है, रेवेन्यू नेचर है, ये हमने एक्सपेंसेस पे नहीं किए तो दैट मीन्स ये आउटस्टैंडिंग है, इनकम हमारे को एडवांस में रिसीव हो गई है, दैट मीन्स इट इज अन इनकम. तो इस मेथड को यूज करने के लिए हमें कुछ नॉलेज, कुछ स्पेशल जो है हमें इसकी पता नीड होती है, सो दैट इट इज नॉट अ सिंपल मेथड एंड इट रिक्वायर्स पर्सनल जजमेंट. अभी मैंने बताया जो अकाउंटेंट है अगर उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अन इनकम के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी, उसको ये नहीं पता होगा कि मैंने ये एक्सपेंसेस इसमें रिकॉर्ड करने हैं या नहीं करने, तो दैट मीन्स इट रिक्वायर्स पर्सनल जजमेंट एंड एस्टिमेट also. So these are the both of basis of accounting, and now we differentiate between both of the accounting. You can differentiate both of the basis very easily. For example, it is simple method, it is not a simple method, it need no estimate, it need an estimate, it need no personal judgment, it needs personal judgment. Companies Act do not recognize it, and Companies Act 2013 recognize it, and there is no concept of outstanding expenses and prepaid expenses, but outstanding expenses and prepaid expenses concept arise in accrual basis of accounting, and it
does not explain the, does not show the true profit and loss of a particular period, and it shows true profit and loss of a particular period, and it does not differentiate between capital and revenue nature item. Cash basis, it does not differentiate between cash and capital and revenue nature item, and this method does not follow matching principle, and this method follow matching principle. So you can differentiate both of the method very easily. So I hope you understand this topic and you revise this topic with from your book and write the differentiate and basis of the accounting in your notebook. Thank you. Have a nice day. We will meet again